government release all prisoners, release the curfew. आज राज्यसभा में सरकार ने बेरोजगारी पर बड़ा बयान दिया है। सरकार ने एक सवाल के जवाब में बताया कि पिछले 7 सालों में कितनी नौकरियां दी गई। वहीं लोकसभा में कोरोना पर गंभीर चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने क्या कहा, सरकार ने क्या कहा, ये सारी बातें करेंगे। नमस्ते, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा खास शो जिसका नाम है संसद में आज। इसमें हम आपको बताएंगे कि आज संसद में क्या क्या हुआ, क्या क्या चर्चाएं हुई, कौन से बिल पास हुए और क्या बातें हुई। रोज की तरह आज भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। राज्यसभा में हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई और इस वजह से सभापति वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही कुछ ही मिनटों के भीतर स्थगित कर दी। 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। उसके बाद कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। लेकिन फिलहाल हम लोकसभा की तरफ चलते हैं। Honorable members, there were suspensions in the past. Some of them were revoked prematurely because the errant members regretted their acts of misconduct in the House. I am deeply pained to know that from media reports of categorical refusal to express any regret for the act of misconduct during the last session led to this round of suspension. Then what is the way forward? You don't want to regret your misconduct, but insist on revoking the decision of this August House taken as per the due procedure laid under the rules of the House. Does this amount to upholding the principles of democracy? Leader of the House has stated in his House that revocation of suspension could be considered if the concerned expressed regret for what was done in the House during the last session. Deputy Chairman has urged both the sides to talk it out and do the needful to move forward to enable normal functioning of the House. As it is human error, it is human to err and also human to make amendments. One cannot refuse to amend the insist on glossing over the wrongdoings. Suspensions, either in the past or now, are only the expression of disapproval of the acts of misconduct of some members of the House. So disapproval of undemocratic conduct in the House cannot be described as undemocratic for sure. I urge both sides of this August House. Please talk it out and then find a way to do the mandated job of this House. This is my appeal to the entire House. Now we go to the Jira Hour. Sri Ajay Pratap Singh, Jira Hour. Right. It is true that something unfortunate happened in the South. Right. We don't know that. Right. I have heard the LOP first today. I have heard he has gone on record, and then you can't repeat it. Same. This is not the way. I am not going to accept it. Go to your seats. Go to your seats. Please go to your seats. Go to your seats. Sit down. Sit down. Sit down. If I can't order, who else can order? The House is adjourned to meet at 12 o'clock. लोकसभा में आज माहौल थोड़ा शांत रहा। आज पहला दिन था जब प्रश्नकाल पूरा हो सका। मतलब जब से ये शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है उसके बाद आज प्रश्नकाल पूरा पहले आज ही हो सका है। इससे पहले प्रश्नकाल हंगामे के चलते नहीं हो पा रहा था। प्रश्नकाल में जल शक्ति, नागरिक विमानन, सड़क परिवहन और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालयों से जुड़े पूरक प्रश्न पूछे गए। प्रश्नकाल में एक सवाल का जवाब देते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारतमाला और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के बारे में अहम जानकारी दी। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हमारे गति शक्ति ये योजना आने के पहले भारतमाला योजना आई थी और उसमें करीब 20,000 किलोमीटर का काम अभी चल रहा है और उसी में ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहे हैं। दिल्ली मुंबई हाईवे हो, दिल्ली से कटरा के हाईवे हो, ऐसे करीब 24 से 26 हाईवे बन रहे हैं। जहां तक ये भारतमाला योजना थी, ये फेज 1 और फेज 2 में 65,000 किलोमीटर की थी और इस योजना को गति से काम चल रहा है और आने वाले साल में फिर से एक बार इसकी फेज 2 के लिए भी हम जल्दी ही काम शुरुआत करने वाले हैं, जिससे देश की तस्वीर निश्चित रूप से राष्ट्रीय महामार्ग की बदल जाएगी। जहां तक गति शक्ति की बात है, उसके लिए हमें स्वीकृति मिली है और वो स्वीकृति ये मिली है कि गति शक्ति के योजना के बाद जो हमारी नेशनल हाईवे 1,47,000 किलोमीटर था, अब उसको 2 लाख किलोमीटर करने का उसमें प्रस्ताव है और गति शक्ति में निश्चित रूप से 2 लाख किलोमीटर हाईवे करने के बारे में मान्यता मिली है और उसके साथ साथ भारतमाला में 2 फेज में 65,000 किलोमीटर की मान्यता मिली है
और इसके आधार पर कुछ निकष तैयार करके इसके आधार पर हम लोग नए नेशनल हाईवे को मान्यता देंगे और जहां उसके जो निकष बनेंगे उस समय पिछड़ा हुआ क्षेत्र टूरिज्म के दृष्टि से महत्वपूर्ण और गति शक्ति में लॉजिस्टिक के दृष्टि से पोर्ट को, एयरपोर्ट को और विशेष रूप से हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, इसलिए उसको जोड़ा गया है। और उसके साथ साथ दोनों योजना में हमने एक कंपनी बनाई है जिसमें हम लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। करीब 35 लॉजिस्टिक पार्क का ऊपर हमने अभी काम शुरू किया है और आने वाले समय में 2 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क भी इस रोड के बाजू में बनेंगे, जिसके कारण देश के इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी है कि विशेष रूप से जो हमारे विकसित राज्य है उसमें तो काम हो ही रहा है, पर जो नॉर्थ ईस्ट जैसा क्षेत्र है, उत्तराखंड है, हमारे कश्मीर जैसा क्षेत्र है, वहाँ भी भारतमाला और गति शक्ति में काम शुरू है। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि केवल नॉर्थ ईस्ट में 2 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं और कश्मीर में 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं पर टनल बन रही है और बड़े प्रमाण पर काम हो रहा है। और निश्चित रूप से ये दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ सदन को दिलाना चाहता हूं कि ये हमारा यूरोपियन स्टैंडर्ड के बराबरी में होगा और इतना ही नहीं तो अमेरिकन स्टैंडर्ड तक पहुंचाने की हमारी कोशिश होगी। नितिन गडकरी के बाद नंबर आता है अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार अब्बास नकवी से मदरसों की हालत पर सवाल किया। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश में कितने रजिस्टर्ड मदरसे हैं, इन मदरसों में कितने टीचर हैं और सरकार इन मदरसों को कैसे एम्पावर कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? ओवैसी जी, उन्होंने कहा कि 520 करोड़ रुपए दिए यूपी में। सर, यूपी में आपने अब तक 5 साल में कितने पैसे दिए और इस साल में देने का कितना पैसा देंगे वो मदरसा मॉडल स्कीम के साथ? 50,000 टीचरों को तनख्वाह नहीं मिली। मंत्री जी जवाब दीजिए इसका। आदरणीय ओवैसी साहब, आपने इस संबंध में एक चिट्ठी भी लिखी थी और इस संबंध में आपका पत्र भी आया। मदरसों में और इसके अलावा जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें अलग अलग जो हमारे केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के भी एजुकेशनल एम्पावरमेंट की स्कीम्स हैं, उसके तहत लोगों का एजुकेशनल एम्पावरमेंट हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जहां तक सवाल है मदरसों का, अलग अलग मदरसों के बारे में जो ये आप दोनों मित्र हैं? नहीं, आप अलग, आप दोनों मित्र हैं, दोनों मिलकर बात कर लेना। मदरसों का पूछा है उन्होंने, उसमें जो है वो इस देश में जैसा कि आप जानते हैं आप दोनों कि लगभग 28,590 मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं और उसमें जो है वो 1,47,000 टीचर्स हैं और इन 1,47,000 टीचर्स के अलावा जो है वो हमने जो अलग अलग स्टेट के मदरसे बोर्ड हैं, उन मदरसे बोर्ड और राज्य सरकारों द्वारा जो भी रिकमेंडेशन आती है, उस रिकमेंडेशन के आधार पर हमने जो है वो अभी 3-4 दिन पहले ही जो है वो उन राज्यों की जो मांगे थी उसको हमने अप्रूव किया है और उनसे यूसी आएगा तो उसके बाद रिलीज होगा। लोकसभा के बाद अब फिर से चलते हैं राज्यसभा की तरफ। 12 बजे कार्यवाही शुरू हुई। उपसभापति हरिवंश सिंह ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन हंगामा नहीं थमा। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी, टीआरएस, आईयूएमएल ने महंगाई के मुद्दे पर राज्यसभा से वॉकआउट किया। टीएमसी ने भी 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर वॉकआउट किया। लेकिन इन सब के बीच राज्यसभा में सरकार की तरफ से बेरोजगारी के मुद्दे पर एक अहम जानकारी आई। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि साल 2007 से 2014 तक, मानी मोदी सरकार के आने से पहले के जो 7 साल है, यूपीए सरकार के जो दौर है 7 साल का, उसमें एसएससी, यूपीएससी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से 6,19,077 नियुक्तियां हुई। और उसके बाद कितनी हुई, मंत्री ने यह भी जानकारी दी। पिछले 7 साल में 6,98,011 नियुक्तियां हुई। सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता सभी सारे समाज की चिंता रहती है कि कितने पद है और कितनी नियुक्तियां होंगी और कितना भाव है, परंतु उन्हें ये जानकर के संतोष होगा
कि निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और नियुक्तियों की प्रक्रिया को तीव्र गति दी गई, वहां साथ ही साथ अनेकों नई वैकेंसीज भी क्रिएट करने का प्रयास हुआ है। और यदि आप आंकड़े देखें तो वर्तमान सरकार के 7 वर्षों की तुलना यदि आप पिछले 7 वर्षों से करें, अर्थात 2007-8 से लेकर के 2013-14 तक, तो उस अंतराल में 6,19,027 नियुक्तियां हुई थी यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और एसएससी के माध्यम से, जो केंद्र की संस्थाएं हैं। उसके विपरीत अब के 7 वर्षों में यद्यपि 1.5-2 वर्ष कोविड काल रहा, फिर भी लगभग 1 लाख वृद्धि हुई है नियुक्तियों की संख्या में, अर्थात 6,98,011। और इसके अतिरिक्त यदि आप देखें कि नई वैकेंसीज पैदा करने का क्रम, तो 2014 में जब ये सरकार आई तो सैंक्शनड स्ट्रेंथ केंद्रीय पदों की थी 36,45,584। आज 2020, क्योंकि 21 तो अभी समाप्त होने को है, तो 20 के अंत तक ये आंकड़ा बढ़कर के 40,04,941 हो गया, बावजूद कोविड के। तो कहने का तात्पर्य ये कि एक और वैकेंसी बढ़ाने का भी प्रयास हो रहा है, दूसरी गति भी बढ़ाई जा रही है। इसमें एक बाधा आती है जिसमें सभी माननीय सदस्य भी प्रयास कर सकते हैं और हम भी करते हैं, कि बहुत सी लिटिगेशन ऐसी रहती हैं आपस में, जिसके कारण पदोन्नतियां करना दिक्कत हो जाता है। अगर की जाए तो एडहॉक की जाए तो उसके लिए भी कभी कभी रिट हो जाती है। लेकिन सरकार की ओर से किसी प्रकार का विलंब या कमी नहीं रहती, बल्कि इसको और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए 2016 1 जनवरी से इंटरव्यू की प्रथा भी समाप्त कर दी गई और आने वाले समय में इसको और सरल बनाने के लिए एक कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत। हमारी तो कल्पना ये थी कि इसी वर्ष अक्टूबर में उस तरह का पहला टेस्ट हो जाता, जिससे कि देश के प्रत्येक जिले में एक सेंटर रहेगा, तो लेवल प्लेइंग फील्ड, किसी को किसी तरह की डिसएडवांटेज नहीं रहेगी, चाहे किसी भी वर्ग से वो उम्मीदवार संबंधित क्यों ना हो। और शुरुआत में 3 विभागों को लेकर के ये टेस्ट किया जाएगा, उसमें रहेंगे रेलवे, बैंकिंग सेक्टर और एसएससी वाले पद, और आगे चल करके उस अनुभव के आधार पर इसको और व्यापक बनाने का प्रयास रहेगा। मतलब सरकार ये कहना चाह रही थी कि पिछली सरकार से ज्यादा नौकरियां इस सरकार में दी जा रही हैं, लेकिन आपका इस बारे में क्या मानना है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम फिर से लोकसभा की तरफ चलते हैं। नियम 193 के तहत लोकसभा में कोविड-19 महामारी से जुड़े पहलुओं पर चर्चा हुई। विपक्षी सांसदों ने सरकार को अलग अलग पहलुओं पर घेरा। असम से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार से पूछा कि लॉकडाउन के दौरान सरकार के हेल्पलाइन पर कितने बेबस बच्चों और महिलाओं ने कॉल किया और सरकार ने कितनों की मदद की। पश्चिम बंगाल से टीएमसी के सांसद काकोली घोष ने सरकार से पूछा कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज देने की बात हुई थी, वो अभी तक क्यों नहीं देगी, और बच्चों के लिए भी अभी तक डोज क्यों नहीं लाई जा सकी। इस चर्चा के दौरान महाराष्ट्र से सांसद डॉक्टर अमोल राम सिंह ने कहा कि जंग जीतने के लिए नियमों का पालन होना जरूरी है, विदेशी फ्लाइट्स पर रोक लगाएं, जीनोम सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, और आने वाले समय में नेता चुनावी रैलियों में नहीं बल्कि कोरोना से जंग के मैदान में नजर आने चाहिए। पीएम की रैलियों में भी कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी, ऐसा दोबारा ना हो। अपने भाषण के आखिर में सांसद ने मोदी सरकार पर एक कटाक्ष भी किया। क्या कहा उन्होंने, देखिए। और अंत में अध्यक्ष महोदय इतना ही कहूंगा, जंग के एक पड़ाव पर क्षति पहुंची तो क्या हुआ, जंग के एक पड़ाव पर क्षति पहुंची तो क्या हुआ, हम बचेंगे और भी लड़ेंगे, लेकिन कदम मिलाकर चलना होगा, लेकिन कदम मिलाकर चलना होगा, नए जोश से प्रारंभ करना होगा, वरना कहेंगे देशवासी अगर जीत का सेहरा सिर बंधवाना है तो पराजय का बोझ भी स्वीकारना होगा। अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे फोटो छपवानी है तो डेथ सर्टिफिकेट का भी जिम्मा लेना होगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इसी चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि आज चाहे कोई भी चुनौती हो, पीएम के नेतृत्व में भारत पूरी तरह से तैयार है। आज 60 जिलों में आरटीपीसीआर लैब तैयार हैं। गरीब को जांच के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए लैब की सुविधाएं लोकल लेवल पर भी उपलब्ध कराई गई है। देखिए उनकी पूरी बात। मैं इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करूंगा अपनी सरकार को कि आज इस ओमिक्रॉन पे
जब चर्चा हो रही है तो ये हमारा सौभाग्य है कि अभी भारत में कोई दस्तक नहीं दिया है और भारत में अभी कोई एक केस नहीं मिला। यूएस में आ गया है। दुनिया के पहले 12 देश थे, 20-22 देश हैं जिसमें ओमिक्रॉन के लक्षण हैं, साउथ अफ्रीका से शुरू होकर के। लेकिन इसके बावजूद कि आज जब ये ओमिक्रॉन का एक केस भी नहीं है, ये सरकार की गंभीरता है कि अभी दुनिया के तमाम देश इस वेरिएंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अपना मेडिकल का हेल्थ प्रोटोकॉल बनाने का निश्चय कर रहे होंगे। उस समय हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इस दस्तक के पहले ही अपने देश के सभी राज्यों के मंत्रियों के साथ, स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ चर्चा कर चुके हैं, जिसके संबंध में माननीय मंत्री ये विस्तार से कहेंगे। तो मैं कह सकता हूं अपने प्रतिपक्ष से कि शायद अगर श्रेय लेना होता तो शायद ये चर्चा मंत्री नहीं करते, स्वयं सरकार पहल करती। लेकिन अगर देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से चर्चा इस चुनौती पे कर रहे हैं तो ये सबका है कि सम्यक रूप से प्रयास करके केंद्र सरकार लगातार राज्यों को विश्वास में लेकर के और इस चुनौती का मुकाबला करना चाहती है। मैं समझता हूं श्रेय की बात आप कर रहे हैं। जब हम कोविड के लॉकडाउन में थे, जब घरों में लोग अपनी दहलीज के बाहर नहीं आ रहे थे, उस समय भी चाहे प्रधानमंत्री जी हों, जिस तरह से देश के उन तमाम लेबोरेटरीज में जहां हमारे वैज्ञानिक इस कोविड की चुनौती के लिए वैक्सीन के इजाद में रात दिन लगे थे, स्वयं प्रधानमंत्री गए। और ये शायद देश का पहला इतिहास रहा होगा कि जब हम इस चुनौती के समय हमारे पास पीपी किट भी नहीं था, हम पीपी किट चाइना से मंगा रहे थे। जो लाट आया था उसको इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च ने कहा घटिया स्तर का लाट आया है, उसको ब्लैक लिस्ट किया चाइना की कंपनी को। मतलब हमारी निर्भरता वेंटिलेटर हो, पीपी किट हो, NK95 हो, ये हम दूसरे देश पे, चाइना या अन्य देशों पे निर्भर थे। इसी चर्चा में भाग लेते हुए सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से पूछा कि भारत में सभी को दोनों डोज कब तक लग जाएंगी। उन्होंने कहा कि बच्चों को बचाने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर शॉट कब दिया जाएगा, ये भी सवाल उन्होंने पूछा। सुनिए। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आपने क्या किया अभी तक? अगस्त 2021 तक सर सिर्फ 0.2 सैंपल सीक्वेंस हुए हैं और आज कर्नाटका से 2 लोगों को ये न्यू वेरिएंट हुआ है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है? आप सिर्फ 0.2 अब तक किए हैं सर, और यही अनप्रिपेयर्डनेस, यही गफलत, जिसको उर्दू में कहते हैं ख्वाबे गफलत की वजह से सेकेंड वेव आई, जो जिम्मेदारी पूरी आप पर आयद होती है। अगर आप गाफिल नहीं होते, अगर आप जागते रहते तो सेकेंड वेव नहीं आती। दूसरी बात सर कि 28 मई को उस वक्त के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर आज हमारे हाउस में नहीं, उन्होंने ये कहा था सरकार की तरफ से कि पूरे भारत में अडल्ट को दिसंबर 2021 तक डबल वैक्सीनेशन लग जाएगा। आज कोविन पोर्टल पर आप देख लीजिए 33% लोगों को फुली वैक्सीनेटेड है, और जो हेल्थ इकोनॉमिस्ट रिजो जॉन का कहना है कि 43% और 45 प्लस यानी 45 साल से कम उम्र की आबादी के लोगों का भी वैक्सीनेशन होना बाकी है। अब आपका टारगेट क्या है? आपने तो मार्च 31, 2021 को कह दिया था कि जो 45 साल की उम्र के हैं उनको 2 हफ्ते में लगा देंगे। कितनों को लगा? तीसरा मेरा सवाल हुकूमत से यह है कि आपने कहा था, सरकार ने, मोदी सरकार ने कहा था कि यह सरकार 2.15 बिलियन एडिशनल डोसेस को मैन्युफैक्चर करेगी अगस्त दिसंबर 2021 में। बाद में कहा गया नहीं वो एस्पिरेशनल है, उसको रिड्यूस कर दिया गया 1.35 बिलियन पर। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अगर 1.5 करोड़ डोसेस पर डे नवंबर दिसंबर में आपने 40 करोड़ डोसेस पर मंथ में आपने प्रोड्यूस करना था, तो फिर आपने अब तक सिर्फ 16 करोड़ डोसेस अक्टूबर 2021 में क्यों लगाए? यानी यह भी आपकी झूठ, जो आप कहते हैं उसके टोटल खिलाफ आप काम करते हैं। आप सरकार यह बता दे कि पूरे भारत में पूरों को 2 डोज कब तक लगेगा? क्या यह सच नहीं है कि 2022 के जून तक आप डोज लगाएंगे? 5वां सवाल यह है कि हमने बच्चों को बचाने के लिए क्या तैयारी की आपने? उनको कोई वैक्सीन नहीं है।
आपने नहीं किया। बताइए क्या पॉलिसी, आपके पास खामोशी है, सन्नाटा है। सर, हमने अपने हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स को जो सेकेंड डोज दिया, 7 महीने हो गए, आप उनके लिए बूस्टर शॉट देंगे नहीं देंगे? पीडियाट्रिक्स का वार्ड आपने कैसे स्ट्रेंथन किया बताइए? आज कर्नाटका के जो 2 लोगों को ये नया वेरिएंट हुआ है, क्या सरकार बताएगी कि उनको 2 डोज लग चुके थे? 2 डोज लगे थे उनको, आप छुपा रहे हैं बात को। तो बूस्टर शॉट्स कब देंगे पूरे देश में आप? अभी तक जून में पूरी आबादी को 2 वैक्सीन लगेंगे, तो बूस्टर शॉट आप देंगे नहीं देंगे? हमारे हेल्थ वर्कर्स को सवाल जवाब दे। सर, दूसरा, इनकी गलती बता रहा हूं सरकार की, 25% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर के लिए। प्राइवेट सेक्टर ने कितने अब तक लगाए? प्राइवेट सेक्टर ने 25% में खाली 9% किया है। और मैं यहां पर तो सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करूंगा, बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि मैं सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानता हूं, यह हाउस सॉवरिन है, मगर अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछता तो आप तो 50% दे देते थे। सुप्रीम कोर्ट की वजह से आपको कम करना पड़ा, मगर उसमें भी प्राइवेट सेक्टर में यह हुआ। अच्छा सर, एक स्टडी हुई अतुल ठाकुर, रीमा नागराजन की, जिसने कहा गया कि भारत की जनता, अंग्रेजी में पढ़ने चाह रहा हूं, कि अबाउट अ फिफ्थ ऑफ द कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन और अबाउट 5,000 crore has been borne by people out of their own pockets or by the employees. What is this claim about free vaccines? This is the study of Atul Thakur and Nima Nagarajan. Sir, another point of where court intervened. Had the court not intervened and asked about vaccines, you are giving credit to Modi, Mr. Modi, the Prime Minister. But when did you order the vaccines? Did you order the vaccines in 2020, July, August? You ordered vaccines in January 2021. You are the main cause of more than 40 lakh people dying in India. That is the real reason. You can give claims and all the praises to the Prime Minister, but this is the fact, sir. When did you order vaccines to Covishield and Covaxin? Oh, your turn will come, please. You can respond to it. You can respond. You can. आप क्लियर। अच्छा, सर और एक बात, आयुष्मान भारत, बहुत बाजा बजा आयुष्मान भारत का। आरटीआई का एप्लीकेशन है कि आयुष्मान भारत में पूरे झारखंड में सिर्फ 1,419 लोगों ने इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश में 8.15% ट्रीटमेंट हुआ। फाइंडिंग्स आई कि जो आयुष्मान भारत में एनरोल होता है, डायग्नोस्टिक्स के लिए पैसे, मेडिसिन के लिए पैसे, प्री हॉस्पिटल पैसे, ये ईपीडब्ल्यूडी की स्टडी है झारखंड के लिए। उत्तर प्रदेश 21 करोड़ का प्रदेश, कितने लोगों को आयुष्मान भारत पीएमजेवाई मिला सर? 875 पीपल। मुबारक हो आपको। बिहार में सिर्फ 19 पीपल। ये आरटीआई एप्लीकेशन ओहो नहीं है, हाँ है, ये सच्चाई है। अच्छा सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएमजेवाई को 6,400 करोड़ 2021-22 में दिया, रिवाइज एस्टिमेट्स में रिड्यूस कर दिया 3,200 करोड़। ये आपकी तैयारी है, आपने रिड्यूस कर दिया उसको, और आप पूरा बाजा बजा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, क्या क्या करेंगे नहीं मालूम। अच्छा सर, सिरिंज मैन्युफैक्चरिंग कहीं की गलती देखिए। सिरिंज मैन्युफैक्चर से उन्होंने आपसे पूछा कि क्या हम कन्वेंशन सिरिंज बनाए या एंटी ऑटो डिस्पोजेबल? आपके पास जनवरी 2021 को आए थे मैन्युफैक्चर, आप जुलाई में ऑर्डर देते और अक्टूबर में आपको बैन लगाना पड़ा। यह आपकी गलती नहीं है, यह सरकार सो नहीं रही थी। अच्छा सर, एपीआई का कितना डाटा आप दे सकते देश को बताइए? 29,000 करोड़ का एपीआई चीन से आता है। आपने क्या तैयारी की बता दीजिए एपीआई के बारे में? आपके पास कोई डेटा नहीं है। इंडिजिनियस, अच्छा सर, कोविड टेस्टिंग की वजह से सर आपको बता रहा हूं कि हमारे देश में 20,000 लोग टीबी से मर गए, क्योंकि खाली कोविड टेस्टिंग, और उसके लिए आपने क्या तैयारी की? कैंसर के पेशेंट्स, ये सब चीजों के ऊपर आपके पास कोई जवाब? सर्जिकल इक्विपमेंट सर, सर्जिकल इक्विपमेंट, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी है सर्जिकल इक्विपमेंट की आपके? हाँ सर, गिव मी 2 मिनट, आई एम कंक्लूडिंग सर। सर्जिकल इक्विपमेंट सर, गवर्नमेंट क्या करने वाली है सर्जिकल इक्विपमेंट के लिए? इंडस्ट्री को आज भी लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री सेल सर्टिफिकेट नहीं मिलता। इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरर को आप क्या कर रहे हैं सर? ये, और फिर से कोर्ट का शुक्रिया अदा करूंगा, हमारे इम्तियाज जलील एमपी ने पीआईएल फाइल किया औरंगाबाद में, और पीआईएल फाइल किया कि महाराष्ट्र में डॉक्टर्स, नर्सेस क्लास 3 और 4 की वैकेंसी खुद पर्सनली अपियर हुए, तो कोर्ट ने उसको कन्वर्ट कर दिया पूरे महाराष्ट्र के लिए। सर, पूरा का पूरा तो कोर्ट ने काम किया, सरकार ने क्या किया? अगर आप हरकत में रहते तो यकीन जानिए भारत में 40 लाख लोगों की मौत नहीं होती।
आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुबारकबाद दे दी नरेंद्र मोदी को कि हम ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में हरा दिए, कोविड को हरा दिए। तो इसीलिए सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मेरा मानना यह है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। सर आखिरी बात, उत्तर प्रदेश में नजारे तो बहुत देखे दुनिया में कि पानी पर लाशें तीर रही है, नदी के किनारे कुत्ते लाशों खा रहे हैं और आप मुबारकबाद दे रहे हैं। सर ये सरकार की नाकामी है। भारत में सेकेंड वेव नहीं आती थी अगर नरेंद्र मोदी की सरकार होशियार रहती, आंख खोलती। बच्चों को बूस्टर शॉट दीजिए, डॉक्टर्स को दीजिए, पूरे देश को दीजिए। शुक्रिया सर। आखिर में, मतलब चर्चा के आखिर में, सरकार की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी सवालों का जवाब दिया। प्रोग्राम शूट होने तक ये चर्चा हो रही है, इसलिए हम आपको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का पूरा जवाब नहीं दिखा पा रहे हैं। लोकसभा में हुई इस चर्चा के बीच राज्यसभा से बांध सुरक्षा बिल 2019 पास हो गया है। अगस्त 2019 में यह बिल लोकसभा से पास हो गया था और अब यह राज्यसभा से पास हो गया है। यह बिल बहुत ही अहम है। बांधों की संख्या के लिहाज से हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास बांधों की सुरक्षा को लेकर कोई कानून नहीं था। तो वो कमी अब सरकार ने पूरी कर दी है। अब ये बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया है। राष्ट्रपति की मोहर लगते ही ये कानून बन जाएगा। तो ये था आज का संसद में आज प्रोग्राम। आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।